Hello everyone, this is Professor Pawan Shonkar and I welcome you in the 35th lecture of Machine Design and Drawing 2. And today we will discuss numerical on spur gear. It will be the last numerical over a spur gear. Hereafter we'll cover portion on helical gear, bevel gear and worm gear. Okay, so let us go for this. Numerical number 3. A reciprocating compressor is to be connected to an electric motor with the help of spur gear. The distance between the shafts is to be 500 mm. दो शाफ्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 500 mm है. स्पर गियर ड्राइव है, गियर एक दूसरे से मेज्ड है, तो जो सेंटर टू सेंटर शाफ्ट का जो डिस्टेंस है दो गियर मेज्ड होने के बाद में वो 500 mm है. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज 900 rpm and speed of the compressor shaft is desired to be 200 rpm. ओके, इलेक्ट्रिक मोटर की आरपीएम है 900 और जो आउटपुट है कॉम्प्रेसर शाफ्ट पे जो आउटपुट मिल रहा है उसकी आरपीएम है 200 आरपीएम. द टॉर्क टू बी ट्रांसमिटेड इज 5000 न्यूटन मीटर. टेकिंग स्टार्टिंग टॉर्क एज 25% मोर देन नॉर्मल टॉर्क. जो टॉर्क दिया है 5000 न्यूटन मीटर वो हो गया हमारा टॉर्क ओरिजिनल, यू कैन से नॉर्मल, एंड मैक्सिमम टॉर्क इज 25% मोर देन द मीन. तो ये हो गया अपना मीन टॉर्क 5000 न्यूटन मीटर और जो मैक्सिमम टॉर्क रहेगा वो 25% मोर रहेगा. नाउ व्हाट इज टू बी डिटरमाइंड. नंबर 1, मॉड्यूल एंड फेस विड्थ ऑफ गियर्स यूजिंग 20 डिग्री स्टब टीथ. दिस इज द प्रोफाइल ऑफ गियर टीथ. एंड सेकंड वन, number of teeth and pitch circle diameter of the gear. Number of teeth as well as pitch circle diameter of each gear, that means pinion as well as gear, both pitch circle diameter and their teeth to be determined. Assume suitable values of velocity factor and Lewis factor. कहीं पे भी मटेरियल मेंशन नहीं है गियर का या फिर पिनियन का, सो दैट इज टू बी एज्यूम. तो मटेरियल एज्यूम करना है मतलब क्या, हमें वो स्टैटिक स्ट्रेस कंसिडर करना है कि व्हाट इज टू बी द वैल्यू ऑफ स्टैटिक स्ट्रेस. ओके, जस्ट लाइक इफ यू कंसिडर material for gear or pinion either steel, cast iron, okay, nickel, so we have to consider according value of stress. So let us start with numerical. First of all we will summarize all the data. What is given? A reciprocating compressor is connected with an electric motor with the help of spur gear. Distance between shaft is to be 500 mm. So length is given as 500 mm. Then RPM is given. Speed of electric motor is 900 RPM. So M लिख रहा हूँ मैं, NM. Speed of motor is 900 RPM. Speed of compressor is desired as 200 rpm, that is the output rpm. Torque दिया है, T is 5000 Newton meter. Okay, can write in Newton mm, 5000 into 10 raised to 3 Newton mm. Okay, no issue, we can write T is 5000 just a minute into 10 raised to 3 Newton mm, that is a mean torque, so we'll write here mean. And T max, maximum torque is 25% more extra. So how did to be written? This is a T mean, whatever value we will calculate, plus 25% of same, that is T mean. तो ये हो गया आपका ओरिजिनल 100% और उसमें 25% ऐड करना है. सो व्हाट विल बी द T max? T max will be 100 plus 125%, so 125%, that means we can write to 1.25 times T mean. Above we have written in terms of percentage and here we have written like number. So
टी मैक्स इज 1.25 इंटू टी मीन। नाउ क्या क्या निकालना है, मॉड्यूल एंड फेस विड्थ, इस सर्कल डायमीटर, नंबर ऑफ टीथ, ये सब चीज़ें निकालनी है। सो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल को। सॉल्यूशन। नाउ सबसे पहले मैक्सिमम टॉर्क निकालेंगे। टी मीन दिया है, देखो बोला क्या गया था यहाँ पे, द टॉर्क इज टू बी ट्रांसमिटेड इज 5000 न्यूटन मीटर। ओके, तो और मैक्सिमम टॉर्क के लिए भी सेंटेंस है वहाँ पे, टी मैक्स इज 25% मोर, सो टी मैक्स इज 1.25 इंटू टी मीन दैट इज 5000, तो ये आ जाएगा 6250 न्यूटन मीटर। ये वैल्यू टी मैक्सिमम की है, बाद में यूटिलाइज करेंगे। देखो इसको mm में भी लिख सकते हैं, 6250 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। अकॉर्डिंग वैल्यू हम यूज़ करेंगे जैसे जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे। ये हो गया मैक्सिमम टॉर्क। देन वेलोसिटी रेशियो, we know that velocity ratio, that is VR, can be defined as speed of motor by speed of compressor, input speed by output speed। तो ये है 900/200। रेशो चेक करो ये कितना आ रहा है, ये आना चाहिए 4.5। तो ये हो गया वेलोसिटी रेशियो, कितना आया 4.5। ओके, नाउ कुछ एजम्पशन करते हैं। लेट dp और dg, p क्या है पिनियन, d क्या है पिच सर्कल डायमीटर, हमें टर्मिनोलॉजी पढ़िए। सो dp इज व्हाट, पिच सर्कल diameter of the pinion connected on motor shaft। मतलब हमने क्या किया है कंसिडरेशन कि जो पिनियन है वो मोटर शाफ्ट पे कनेक्टेड है। देखो स्पीड कम हो रही है, इनपुट जो आरपीएम है वो ज़्यादा है 900 और आउटपुट जो आरपीएम है वो कम है। मतलब क्या है, मोटर शाफ्ट को हमने छोटा गियर कनेक्ट किया है, दैट इज़ पिनियन इज़ कनेक्टेड, जहाँ पे आरपीएम ज़्यादा है। आरपीएम हमें रिड्यूस करना है, इसलिए जो आउटपुट शाफ्ट पे हमें बड़ा गियर अटैच करना है। इसलिए फिर हमने डीपी मतलब जो पिनियन को किससे कनेक्ट किया है, मोटर शाफ्ट से कनेक्ट किया है। लाइकवाइज सिमिलरली डीजी ये क्या रहेगा, पिच सर्कल diameter of gear and connected to which shaft, compressor shaft। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमें स्पीड रिड्यूस करनी है ना, इसलिए वहाँ पे आपको दिख रहा है आरपीएम 900 से 200 करना है, टॉर्क बढ़ाना है हमें। सो डेफिनेटली हमें वहाँ पे कॉम्प्रेसर शाफ्ट को क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, गियर, और इनपुट जो शाफ्ट है उसे क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, पिनियन। गॉट इट। सो नाउ वी विल यूटिलाइज डिस्टेंस, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन शाफ्ट। सो डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट्स, क्या था वो notation L, so can be written as L equal to dp/2 plus dg/2, बराबर है ना। देखो ये क्लियर है, ये एक गियर है, ये दूसरा गियर है, या फिर पिनियन और गियर बोलो, और ये सपोज शाफ्ट सेंटर है, तो ये डिस्टेंस इसकी रेडियस, ये डिस्टेंस इसकी रेडियस, तो सेंटर डिस्टेंस कितना हुआ, ये कंप्लीट L, diameter/2 प्लस diameter/2, डायमीटर ऑफ पिनियन एंड डायमीटर ऑफ गियर, इसलिए L इज इक्वल टू dp/2 प्लस dg/2। ठीक है,
So इक्वेशन हो जाएगा, L की वैल्यू है 500 इक्वल टू dp/2 प्लस dg/2. So again we can write dp प्लस dg, दो कॉमन निकाला और उधर भेज दिया, 500 इंटू 2 विल बी 1000. इक्वेशन नंबर 1 बाद में यूटिलाइज करेंगे. क्लियर है. और वेलोसिटी रेशियो से भी ये इक्वेशन बना सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ dp एंड dg. अगेन वेलोसिटी रेशियो कैन बी स्टेटेड एज dg/dp, dg/dp. गॉट इट. सो वेलोसिटी रेशियो कितना है? हाँ, वेलोसिटी रेशियो था हमारा, एक मिनट, हमने इसके पहले पेज पे कैलकुलेट किया वेलोसिटी रेशियो. सो वेलोसिटी रेशियो है हमारा 4.5 यहाँ पे. सो वेलोसिटी रेशियो इज 4.5 इक्वल टू dg/dp. हेंस dg डिफाइन करके रख देंगे हम. dg इज 4.5 टाइम्स dp. इक्वेशन नंबर 2. नाउ यू कैन सी दैट इफ यू पुट dg is equal to 4.5 times dp in equation 1, both dg and dp can be determined. Okay, so solving equation 1 and 2, अगर हम दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? dp एज इट इज, इक्वेशन 1 देखो, dp एज इट इज प्लस dg को लिख दिया मैंने 4.5 dp इक्वल टू कितना है? 1000. सो 1 dp प्लस 4.5 dp दैट इज 5.5 dp इक्वल टू 1000. तो यहाँ पे आपको dp मिल जाएगा और dp आना चाहिए क्या? 1000/5.5. तो dp आना चाहिए 182. अब dp क्या है? पीस सर्कल डायमीटर है, सो mm. dp आ गया 182 mm. सो dg निकल जाएगा. हेंस dg इक्वल टू, इक्वेशन 1 ही प्रोसीड कर रहा हूँ मैं, dg इक्वल टू 1000 माइनस वॉट? 1000 माइनस dp 182. सो ये आना चाहिए dg इक्वल टू 1000 माइनस 182 जा रहेगा. ये आंसर आ रहा है लगभग 820. ये अप्रॉक्स फिगर होगी. अगर 180 कर दिया यहाँ पे तो हो रहा है वो. ठीक है. अदरवाइज 818 समथिंग कुछ तो भी आ रहा है. सो ये स्टैंडर्ड नेक्स्ट फिगर है 820 mm. और थोड़ा सा कम ज़्यादा चलेगा, कोई इशू नहीं, क्योंकि जो 818 आ रहा है वो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं रहेगी, हमें स्टैंडर्ड वैल्यू यूटिलाइज करनी है. सो dg पी सर्कल डायमीटर फॉर गियर इज 820 एंड पी सर्कल डायमीटर फॉर पिनियन इज 182. नाउ दोनों पी सर्कल डायमीटर कैलकुलेट हो गए. अमंग दी आंसर जो रिक्वायर्ड थे वो उसमें से कोई आंसर हमारे कैलकुलेट हो चुके हैं. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज विल प्रोसीड फॉर मॉड्यूल देन फेस वेट. ठीक है. तो अब यूज़ करते हैं हम पिच लाइन वेलोसिटी. पिच लाइन वेलोसिटी, पिच लाइन वेलोसिटी v, फॉर्मूला क्या है वैसे तो पाई dn/60. अब डिपेंड करेगा हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. अगर गियर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो सो पाई dg और n क्या है? गियर कौन से शाफ्ट पे कनेक्टेड है? मोटर शाफ्ट पे नहीं, कॉम्प्रेसर शाफ्ट पे. सो NC. ओके. पिनियन है मोटर शाफ्ट पे कनेक्टेड. सो अगर गियर के लिए ले रहे हैं हम, सो पाई dn/60. सो dg एंड NC. क्लियर है. सो
v इज इक्वल टू पाई डी जी है हमारे पास में, डी जी है 820 mm, सो 0.82 इन मीटर, एन सी इज 200 रोटेशन पर मिनट एंड बाय 60, सो वेलोसिटी आ जाएगी आपकी 8.6 मीटर पर सेकंड। चलो पिछले लाइन वेलोसिटी आ गई। नाउ वेलोसिटी फैक्टर, वेलोसिटी फैक्टर किससे डिनोट करते हैं हम, CV से। सो वेलोसिटी फैक्टर CV इक्वल टू, देखो वैसे वेलोसिटी फैक्टर का फॉर्मूला है वो भी है 4.5/4.5 प्लस V, और 3/3 प्लस V भी है। तो डिफरेंस क्या है, अगर वेलोसिटी पिच लाइन वेलोसिटी अगर 12 मीटर पर सेकंड से कम है तो फॉर्मूला रहेगा 3/3 प्लस V। अगर 12 मीटर पर सेकंड से एक्सीड हो रहा है तो 4.5/4.5 प्लस V। ओके, ये डिफरेंस है। सो प्रोसीडिंग 3/3 प्लस वेलोसिटी कितनी है 8.6, तो वेलोसिटी फैक्टर आफ्टर कैलकुलेशन 0.26। कुछ यूनिट है क्या, नहीं, इट्स जस्ट वेलोसिटी फैक्टर। आई रिपीट, हमने देखो कभी कभी न्यूमेरिकल में डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा CV इज इक्वल टू इक्वेशन कि भाई यही यूटिलाइज करो, सो नो इशू, हम डायरेक्टली आग बंद करके वो इक्वेशन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर नहीं दिया है, ठीक है, तो इक्वेशन स्टैंडर्ड डाटा बुक से ही चूज़ करने हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि क्या चूज़ करना है, क्योंकि CV के दोनों इक्वेशन डाटा बुक में है। वेलोसिटी अगर 12 मीटर पर सेकंड से कम है सो गो फॉर दिस 3/3 प्लस V, अदरवाइज 4.5/4.5 प्लस V। ओके, तो ये हो गया वेलोसिटी फैक्टर। नाउ न्यूमेरिकल में वैसे मटेरियल दिया नहीं है, सो और वहाँ पे लास्ट सेंटेंस क्या था एक बार देख लेते हैं। एज्यूम सुटेबल वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी फैक्टर, तो हमने कर लिया, एंड लिवाइस फैक्टर। अब यहाँ पे बाकी सभी चीज़ें हमें कंसिडर करनी है, लिवाइस इक्वेशन भी यूटिलाइज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें मटेरियल डिफाइन करना पड़ेगा। सो नाउ लेट अस एज्यूम दैट मोटर पिनियन मतलब पिनियन विच इज कनेक्टेड ऑन मोटर इज मेड ऑफ forged and compressor gear is made of cast steel। ओके, फोर्जिंग से बनाया है पिनियन, और मतलब जो कास्ट स्टील है वो फोर्जिंग से बनाया है पिनियन, स्टील है, सपोज स्टील है पिनियन और कास्ट स्टील है कॉम्प्रेसर गियर। तो इसमें से वीकर और स्ट्रॉन्गर कौन सा रहेगा, ऑब्वियसली जो स्टील वाला है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। वैसे भी फोर्जिंग प्रोसीजर क्या है, हीटिंग एंड हैमरिंग। सो उससे क्या होता है कि हीटिंग एंड हैमरिंग से क्या हो रहा है कि जो स्ट्रेसेस उसमें जनरेट हुए हैं वो रिलीज हो जाएगी हीटिंग और हैमरिंग से, इसलिए जो फोर्स्ड कंपोनेंट है वो स्ट्रेस रिलीव्ड रहेगा एज कम्पेयर टू नेक्स्ट वन। जैसे कॉम्प्रेस्ड गियर क्या सीधा सीधा मेड ऑफ कास्ट स्टील है, उसकी प्रोसीजर नहीं बताइए कि कौन सी हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग कौन सी प्रोसेस से बना है, डायरेक्टली बस मोल्टन मेटल पोर किया है डाई में, या फिर टर्निंग प्रोसेस से किया है, मिलिंग प्रोसेस से किया, वॉट एवर जो कुछ भी मशीनिंग प्रोसेस से किया है, उससे क्या है स्ट्रेसेस उस मटेरियल में जनरेटेड रहेगी, और अगर स्ट्रेसेस है तो उसकी जो ब्रेकिंग चांसेस है वो ज़्यादा रहेगी। फोर्जिंग से क्या हो रहा है कि कंपोनेंट जनरेट होने के बाद, मैन्युफैक्चर्ड होने के बाद में, अदर सिंपली टर्निंग प्रोसेस, तो टर्निंग प्रोसेस मीन्स जो गियर हॉपिंग प्रोसेस रहेगी, ठीक है। तो गियर हॉपिंग प्रोसेस से जब कोई पर्टिकुलर गियर मैन्युफैक्चर्ड है उसके बाद में उसको हीट करो और फोर्स्ड करो, उससे क्या होगा कि जो स्ट्रेसेस है उसमें कम्प्लीटली रिमूव हो जाएंगे। सो अकॉर्डिंगली पिनियन इज स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू गियर, ये यहाँ पे बताना है। ओके, सो वी कैन से दैट
stress of cast steel is less than which one? forged steel. ठीक है। जो स्ट्रेस जनरेशन है वो अभी कास्टेल में मतलब गियर में ज़्यादा रहेगा और पिनियन में कम रहेगा। क्यों? क्योंकि पिनियन फोर्ज्ड स्टील से बना हुआ है। ओके, सो डिज़ाइन शुड बी बेस्ड ऑन दी गियर, क्योंकि स्ट्रेसेस जिसमें ज़्यादा है उसको कंसिडर करके हम डिज़ाइन करेंगे। ऑलरेडी जो स्ट्रांग है अगर उसको कंसिडर करके हम डिज़ाइन प्रोसीजर कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो जो वीकर है उसको थोड़ा सा इग्नोरेंस हो जाएगा उसकी तरफ। सो जो वीकर है उसके लिए डिज़ाइन करेंगे तो आपका टोटल डिज़ाइन सेफ रहेगा। हैंस डिज़ाइन शुड बी बेस्ड ऑन विच वन? गियर और कास्टिल, है ना, कास्टिल गियर। तो गियर को ध्यान में रखते हुए हमें डिज़ाइन करनी है। नाउ फिर से इसको डिवाइड कर देते हैं दो सेक्शन में। नाउ स्टैटिक स्ट्रेस सिग्मा और गियर के लिए ये दिया नहीं है, वो एज्यूम करना है। तो हमने जैसे इमेजिन किया कास्ट स्टील है, सो रेफर्ड वैल्यू इज 140 megapascal. Okay, and what is the profile given? For 20-degree stub teeth, Lewis factor और the Lewis equation किसके लिए? फॉर गियर इज। तो देखो प्रोफाइल के हिसाब से हमें लिवाइस इक्वेशन यूज करना है। सो वाई गियर के लिए वाई जी इज 0.175 माइनस 0.841 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर। ओके, सो इक्वल टू 0.175 एज इट इज माइनस 0.841। वैसे तो हमें नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इस सर्कल डायमीटर ऑफ गियर बाय मॉड्यूल, तो मॉड्यूल चलेगा ऊपर। ओके, है ना। टी जी इज इक्वल टू क्या है? डी जी बाय एम। सो अब ये सॉल्व कितना हो सकता है? डी जी हमें पता है ना, डी जी कितना था? इस सर्कल डायमीटर ऑफ गियर इज 820। सो 0.175 माइनस 0.841 बाय 820 इंटू एम, तो ये आ रहा है 0.001 एम। 0.001 एम क्या आया? ये वाई जी। लेटर ऑन विल यूज इट। नाउ मैक्सिमम टेंजेंशियल फोर्स ऑन द गियर। नाउ मैक्सिमम टेंजेंशियल force on gear. What is the equation? Wt equal to 2 into maximum torque, tau max, equal to 2 into t by g, t by d है। So t is what? maximum torque and d is what? p circle diameter। किसके लिए चल रहा है सब कुछ? गियर के लिए चल रहा है। So 2 into maximum torque by dg। So I'm putting values t into टॉर्क वॉज 6250 इंटू 10⁻³ 10⁻³ मैंने टॉर्क न्यूटन एम में यूज़ किया, मतलब मैं इस सर्कल डायमीटर भी एम में यूज़ करूँगा। सो 820। ओके, तो यहाँ पे जो अभी फोर्स आएगा टेंजेंशियल फोर्स ऑन गियर दैट कम आउट इन न्यूटन। सो 15244 15244। आई रिक्वेस्ट ऑल स्टूडेंट टू प्लीज़ चेक दी आंसर्स, डोंट रिलाई ऑन माई आंसर कम्प्लीटली, प्लीज़ चेक योर आंसर। ठीक है, कम ज़्यादा हो सकता है कभी। आई सॉल्व दिस बाय माई ओन, आप एक बार आंसर चेक करने हैं। नाउ मैक्सिमम फोर्स हो गया, वही इक्वेशन अगर यूज़ करते हैं हम तो हम मॉडल निकाल सकते हैं। वी नो द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर टेंजेंशियल फोर्स ऑन गियर। तो अगेन वी नो दैट डब्ल्यू टी
टेंजेंशियल फोर्स ऑन गियर क्या है, स्टैटिक स्ट्रेस ऑन गियर इंटू वेलोसिटी फैक्टर इंटू फेस विड्थ इंटू पाई इंटू एम, एम इज मॉड्यूल इंटू वाई जी, ठीक है, टूथ प्रोफाइल फैक्टर और लिवाइस फैक्टर। तो ये सब वैल्यूज़ है हमारे पास में 15244 बराबर है, इक्वल टू गियर वाला कितना यूज़ किया था हमने 140 मेगा पास्कल, दैट मीन्स 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सो 140 सीधा सीधा। वेलोसिटी फैक्टर था 0.26 इंटू फेस विड्थ तो पता नहीं, तो फेस विड्थ b इज इक्वल टू क्या है, सिंस b इज व्हाट, ठीक है, फेस विड्थ इज 10 इंटू एम है, सो यहाँ पे सीधा सीधा हम 10 इंटू एम यूज़ करेंगे, इंटू एम अगेन है, और वाई जी है हमारे पास में, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इसको, 0.175 माइनस 0.841 इंटू एम, नो ये हमने सॉल्व किया है ना, हमारे पास में 0.175 0.001, यस 0.001 एम। तो देखो अभी कंप्लीट इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एम अननोन है, तो एम निकल जाएगा, ओके। सो आफ्टर कैलकुलेशन मॉड्यूल एम इक्वल टू, बाई कैलकुलेशन आ रहा है 8.95, तो हमें स्टैंडर्ड यूज़ करना है, नेक्स्ट वैल्यू दैट इज नॉट 9, इट इज़ अ 10 mm, मॉड्यूल है आपका 10 mm। अब मॉड्यूल आ गया, फेस विड्थ निकल जाएगी, सो फेस विड्थ इज 10 m इक्वल टू कितना हो जाएगा, सीधा सीधा अल्टीमेटली 100 mm। फेस विड्थ इज डिनोटेड बाय बी, ओके, लिखा नहीं है बी यहाँ पे, बी इक्वल टू, चलो फेस विड्थ हो गया, मॉड्यूल हो गया, पिच सर्कल डायमीटर दोनों के हो गए, टीथ निकालने हैं हमें, ओके। सो नाउ नंबर ऑफ टीथ दोनों के, गियर और पिनियन के, सो फॉर पिनियन टीपी इक्वल टू क्या रहेगा, डीपी बाय एम, सो डीपी था 182 बाय एम इज 10, सो 18.2, ये रहेंगे 19 टीथ। और क्योंकि 18.2 है, नेक्स्ट फिगर लेनी है फॉर गियर, नंबर ऑफ टीथ टी जी इक्वल टू ये रहेगा डी जी बाय एम, सो 820 बाय 10, सो टी जी इज 82 टीथ। कंप्लीट फिगर है, नो नीड टू यूज next figure, okay। So this is a complete solution for given numerical, okay। So we'll stop here, thank you।